Good morning, friends. Today I am here with a fresh new opportunity for various graduates such as CA, LLB, BCom, MCom, and various other graduates. So here I am with the opportunity of GI, General Insurance Company of India. So before starting this video, let us talk about what is the GIC. GIC is the National Insurer of India, and it is the 11th national insurance company in the world. And it is it is a government company, and if you want to work under the government, then you can definitely go for this job. So we will see in this video like how to apply for this vacancy and what is the CTC and what are the conditions they are offering for this job. So let us start. Before starting this video, if you want to go into HPCL and Wipro and many other private companies, make sure that you subscribe this channel and press the bell icon so that you don't miss any job opportunity coming up. So let's start. If you like this video, please like, share and subscribe to this channel and share this video with all of your friends who have passed recently, because this might help them in getting the job in this tough times. So let's start. It's a GIC vacancy which they have come up, and the post they are offering is assistant manager scale 1, and they have said that the posting they will be giving in the Mumbai office. But what happens is that if they feel like they want uh, your support in other offices also, they may post you, but initially you will be posted in the head office of Mumbai. So if you want to go to Mumbai, then you can if you are willing to go and join in Mumbai office, you can apply here. So they have given like Mumbai, if you are willing to go to Mumbai office, you can apply. uh, if you are like reluctant to go to Mumbai office, then I think you should not apply, because initially they will be posting you in the Mumbai office. So let's begin. What is the start date? So the registration for the for this vacancy started on 11th Feb, and they will be closing on 29th. So just 2 days are left before you could apply for this job. The payment fees could be done only till 29th. The tentative date they have given is till 9th May 2021 afternoon shift. The exam which they will be conducting will be online mode, and you can download your admit cards on 30th April. Around 30th April, they have not given the exact date. So, and for the STSC, OBC, and PWD candidates, they will be providing pre-recruitment trainings from 26th April to 29th April. So if you fall in this category, they will be providing you the required training. So let's see what are the streams for which they are offering this job. So we have four categories, which is finance, chartered accountant, which second is general, legal, and insurance. So number of vacancy comes to 244, and the minimum eligibility of a chartered accountant is they should be graduated in any discipline with minimum 60% marks for general, and for OBC candidate 55% marks, and they should also have passed final examination of Chartered Accountant of India. एंड अगर आप लोग CA हैं और अगर आप लोग आपका CA के साथ आपका कोई ग्रेजुएशन डिग्री भी है विद 60% मार्क्स, यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, एंड दे हैव नॉट आस्क्ड फॉर एनी एक्सपीरियंस. सो अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट एक कंडीशन इसमें ये होगी कि अगर आप फाइनेंस में अप्लाई करते हैं दैट दे आर आस्किंग फॉर द मेंबरशिप नंबर. तो अगर आप लोग ने मेंबरशिप अपना नंबर नहीं अप्लाई किया है तो आप लोग आज ही अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आएंगी और उसमें दे विल बी आस्किंग फॉर योर मेंबरशिप नंबर. सो अप्लाई इट टुडे ओनली. एंड मैंने एक और वीडियो बनाया है मेंबरशिप नंबर के रिगार्डिंग, एक नोटिफिकेशन आया ICI का, तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं. यू विल गेट एन आइडिया. सो नेक्स्ट इज फॉर जनरल स्ट्रीम, दे हैव आस्क्ड फॉर आपने कोई भी ग्रेजुएशन की हो फिर 60% मार्क्स, आप इस जनरल वाले में अप्लाई कर सकते हैं. लीगल के लिए अगर आप बैचलर हैं लॉ की डिग्री में विद 60% मार्क्स, यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब. एंड फॉर इंश्योरेंस अगर आपने कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो 60% मार्क्स के साथ तो यू कैन अप्लाई इन दिस जॉब. सो ऐसे करके 44 जॉब वैकेंसी हैं इसमें. बट इसमें कैच ये है कि आप लोग सिर्फ इन चारों कैटेगरीज में से सिर्फ एक ही कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने एक से ज़्यादा कैटेगरीज में अप्लाई किया तो वॉट विल हैपन इज दैट वो आपकी लास्ट चॉइस बस लेंगे और बाकी जो भी डिसिप्लिन की फीस होगी वो उन लोग फॉरफिट कर देंगे. तो आप लोग आप जैसे डिसाइड कर लीजिए कि अगर आप लोग दो कैटेगरीज में भी फॉलो करते हैं तो जो कैटेगरी आपके लिए बेनिफिशियल होगी उसमें अप्लाई करेगा. और इन लोगों ने एक डेट दी है 1 Feb 2021. अगर इस डेट को आप इसके इन लोग की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस तारीख को अगर वो आप मतलब उस डेट को आप ये सारी क्वालिफिकेशन पोजेस करते थे तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं.
और इन्हें ये भी बोला है कि ये जो कैटेगरीज हैं ऊपर 4, उसमें सारे कैंडिडेट्स को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आनी ही चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। और इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, और अगर आप इंडियन सिटीज़न नहीं है तो यहाँ पे भी कुछ उसके लिए भी है। तो अगर आप नेपाल, भूटान और अदर कुछ कुछ कंट्रीज से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर दैट यू शुड रीड दिस नेशनैलिटी क्लॉज। देन वी हैव रिजर्वेशन है, जनरल 18, SC 5, ST 4, OBC 14 and EWS 13, and total is 44 around. So if you fall in this category, under the reservation category, then you might have a benefit in this. Then we see the what is the age criteria. Minimum age is 21, maximum age is 30 years. और अगर आप लोग रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आते हैं तो उनके लिए भी रिजर्वेशन है, मतलब किसको कितने साल का रिजर्वेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ आती है कि इसकी सैलरी क्या है, उन लोग CTC क्या ऑफ़र कर रहे हैं। तो बेसिक पे जो आपकी होगी वो 32,975 होगी, लेकिन बेसिक पे इज़ 32। एंड अगर आप लोग CTC पूरा ओवरऑल बोलेंगे तो टोटल एमिनिमेंट्स विच भी 65,000 पर मंथ। तो अगर हम 65,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो दैट विल बी 7.8 पर एनम, 7.8 लाख पर एनम। और ये जो 65 है उसमें उसके साथ इन लोग ने बोला है कि प्लस अदर बेनिफिट्स विच आर न्यू पेंशन स्कीम। मतलब अगर आप लोग ये ज्वाइन करते हैं तो आपको 65,000 मिलेगा ही, उसके साथ आप लोग को अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, न्यू पेंशन स्कीम, न्यूज़पेपर, इंटरनेट अलाउंस, लीव, ट्रैवल सब्सिडी, मेडिकल बेनिफिट्स, हाउस फर्निशिंग अलाउंस, ये सारी चीज़ें आप लोग को मिलेंगी। मतलब 65 के अबव जा रहा है, मतलब आपको 7.8 से ज़्यादा ही मिलेगा जो आपको बताया है। 7.8 के बाद मेडिकल, हाउस फर्निशिंग अलाउंस, लीव सब्सिडी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, न्यू पेंशन, नेचुरल कैलामिटी, इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस फॉर फेस्टिवल एंड सो ऑन सो फोर्थ। बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिए इस एडवर्टीजमेंट को, एंड यू कैन डिसाइड वेदर टू गो टू इन दिस और नॉट। बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो, बिकॉज इसमें बहुत सारी कंडीशंस भी है इस जॉब में। सो वी विल सी इन दिस वीडियो व्हाट आर द कंडीशंस। सो नेक्स्ट इन लोग ने एक सर्विस कंडीशन डाली हुई है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो मुंबई में ही पोस्ट होंगे, एंड अगर उनको थोड़े टाइम बाद लगता है कि उनको आपको यहाँ पोस्ट करना है, सो दे आर फ्री, दे कैन पोस्ट टू एनीवेयर इन द कंट्री। नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सो द सिलेक्शन प्रोसीजर इज़ लाइक दे विल टेक एन ऑनलाइन टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स, एंड उसके बाद उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस GD होगा, इंटरव्यू होगा, एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सो जो टोटल मार्क्स रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू के होंगे वो 200 मार्क्स का होगा, लेकिन जो रिटन टेस्ट स्पेसिफिकली होगा वो 150 मार्क्स का होगा, जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। ये जो एग्ज़ाम की डेट है इन लोग ने टेंटेटिव डेट बताई है, एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है। दैट विल बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई 2021। सो यहाँ पे इन लोग ने सेंटर्स की लिस्ट दी हुई है कि आप कौन कौन से सेंटर्स के लिए में से चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपके रिलेवेंट हो यू कैन चूज़ फ्रॉम इट। जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वो ऑनलाइन वे से होंगे, लेकिन ये सेंटर्स में जाके होंगे। वहाँ पे जैसे TCS के ऑनलाइन जो सेंटर्स होते हैं, डिजिटल जोन होते हैं, वहाँ पे जाके बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, वहाँ पे जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सिंस ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम है तो यहाँ पे ये मेक श्योर कर लीजिए आप लोग कि आप लोग जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मेक श्योर कि आप लोग अपना एक आधार कार्ड की कॉपी एंड फोटोग्राफ ज़रूर कैरी करें, बिकॉज वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप कोई भी एग्ज़ाम्स में जाते हैं, मे इट बी गवर्नमेंट और प्राइवेट, बट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में ये चीज़ डेफिनेटली नेसेसरी होती है। सो अब यहाँ पे इन लोग ने ऑनलाइन एग्जामिनेशंस का फॉर्मेट बताया है कि ये सबसे पहले तो स्पेशलिस्ट है और जनरल स्ट्रीम है। तो स्पेशलिस्ट में जो अपन ने 4 कैटेगरीज ऊपर देखी थी उसमें से हम पहले ये देखते हैं कि स्पेशलिस्ट में क्या फॉल करेगा। सो सबसे पहले तो स्पेशलिस्ट में जो फॉल होगा वो होगा एक फाइनेंस, एक होगा लीगल एंड एक इंश्योरेंस। मतलब 3 जो कैटेगरी है वो स्पेशल कैटेगरी में फॉल करेंगे, एंड एक जो कैटेगरी है जनरल वाली वो जनरल कहलाएगी। उसके लिए इन लोग ने अलग अलग दिया हुआ है कि जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए टेक्निकल एंड प्रोफेशनल जो भी आपको रिलेवेंट डिस्पल, अगर आप CA हैं तो CA का करिकुलम होगा, अगर आप लीगल हैं तो लीगल का होगा, और अगर आप या फिर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस का होगा। सो उसके लिए इन लोग ने रिलेवेंट डिस्पल बोला है कि मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होगा, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क्स होगा। नेक्स्ट जो पार्ट B और C है, पार्ट B और C जो होगा वो कॉमन होगा सारी स्ट्रीम के लिए। इट विल बी रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। सो ये सारी जो चीज़ें ये जनरल होती हैं, ये हमें आनी ही चाहिए। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग एक बार प्रिपेयर करते रहते हैं तो आप लोग कोई भी टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
ये जो पार्ट बी और सी है ये सारी स्ट्रीम के लिए कॉमन होगा, और लेकिन इसमें पार्ट जो ए है, जो जनरल स्ट्रीम के लिए जो पार्ट है होगा वो होगा हाई ऑर्डर थिंकिंग एबिलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग इसमें होगा। लेकिन अगर आप स्पेशलिस्ट हैं तो आपका 40 मार्क्स आपके रेलिवेंट डिस्प्ले को अलॉट किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इनने बोला है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ऑनलाइन टेस्ट का वो जनरल कैटेगरी के लिए 60 है एंड 60% फॉर ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस। तो ऑनलाइन टेस्ट 150 मार्क्स का है, ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस 200 मार्क्स का है, मतलब जीडी एंड इंटरव्यू प्रोसेस मतलब 50 मार्क्स का है हमारा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, हर एक रॉन्ग आंसर पे 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड, मतलब हमारा 1/4 जो 0.25 विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। ये जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश हिंदी में होगा, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश का जो पार्ट है वो हिंदी में आपको नहीं दिया जाएगा उसके क्वेश्चन। ये जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन मोड के थ्रू होगा। ये टोटल टेस्ट की टाइमिंग जो होगी जो 150 मार्क्स है दैट विल बी 150 मिनट्स। सो आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दे आर अलॉटिंग। 30 मार्क्स फॉर पार्ट ए ऑब्जेक्टिव, 60 मार्क्स फॉर पार्ट बी, 60 मार्क्स फॉर पार्ट सी डिस्क्रिप्टिव। तो इस जो 150 मार्क्स का जो पेपर है 150 मिनट्स में होगा एंड जिसके 3 पार्ट होंगे ए बी एंड सी। ए एंड बी विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, पार्ट सी विल बी डिस्क्रिप्टिव, जिसके लिए फर्स्ट पार्ट के लिए 30 मिनट, सेकेंड पार्ट के लिए 60 मिनट्स एंड थर्ड पार्ट के लिए 60 मिनट्स आपको देंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें ये देखेंगे, यहाँ पे यही दिया हुआ है कि आप पैन कार्ड, पासपोर्ट या परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आपको ले जाना पड़ेगा। को भी आई विल सजेस्ट कि आप लोग आधार कार्ड ले जाएं तो वो बेटर होगा। आधार कार्ड में आपका वही डेट एंड नेम होना चाहिए जो आप एग्ज़ाम में आप ऑनलाइन फॉर्म में भरेंगे, बिकॉज इट शुड मैच। नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे वो इंटरव्यू का देखेंगे। ये है पे इन लोग ने बोला है कि अगर आप कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन में तो ही उन लोग को ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड फॉर गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड इन द ऑनलाइन एग्जाम यू शुड एटलीस्ट पोजेस 60% मार्क्स। सो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए 60% इज इम्पॉर्टेंट अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, और अगर आप दूसरी कैटेगरी में तो उसके लिए थोड़ा लोअर कट ऑफ है। यहाँ पे इन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है कि आपको इंटरव्यू के टाइम क्या क्या देनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग अगर आप इंटरव्यू के लिए हो जाते सिलेक्ट देन यू कैन गो थ्रू दिस लिस्ट। और भी मेन चीज़ें हैं इसमें नीचे डॉक्यूमेंट्स में आई विल टेल यू। सो ये आता है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, इस जॉब का कैच क्या है। सो ये प्रोबेशन पीरियड है और ये गारंटी बॉन्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू गो फॉर दिस जॉब। सो इसमें ये दिया है कि जो भी कैंडिडेट होगा वो जिस भी डेट से ज्वाइन करेगा उस डेट से 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे होगा। तो अगर आप मेडिकली फिट हैं तो ही तो आपको 1 साल पे लोग प्रोबेशन पे रखेंगे। फिर उसके बाद ही आपकी जो जॉब है वो कंफर्म होगी। सो ये जो प्रोबेशन पीरियड है वो 1 साल के लिए और लाइक एक्सटेंड हो सकता है, दे हैव क्लियरली गिवन दैट। एंड जो प्रोबेशन पीरियड होगा उसमें आप लोग को थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, मतलब दे विल बी प्रोवाइडिंग दैट ट्रेनिंग। सो इसमें ये है कि अगर ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड आपको एक नॉन लाइफ लाइसेंस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी जो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया होगा, उसमें आपको पास करना पड़ेगा, तभी आपकी जो जॉब है वो आपकी प्रोबेशन से कंफर्म होगी। और अगर आप इसमें फेल नहीं होते हैं तो विद इन द प्रोबेशन पीरियड सो अगर आप इस सर्विस से टर्मिनेट हो जाएंगे। इसमें गारंटी बॉन्ड है, गारंटी बॉन्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज गारंटी बॉन्ड इज़ लाइक अ सर्विस अग्रीमेंट और बॉन्ड आप लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। सो इसमें ये है कि अगर आप लोग इसमें जो पीरियड है वो 4 ईयर्स का है इंक्लूडिंग प्रोबेशनरी पीरियड। तो अगर आप लोग आज से ज्वाइन करते हैं तो आज से 4 साल बाद तक को आपको ये कंपनी में सर्व करना पड़ेगा। एंड इफ़ नॉट तो अगर आप लोग उसके पहले ही ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको 1 साल की जो भी आपकी सैलरी होगी, ग्रॉस सैलरी आपको पे की गई होगी, वो आपसे रिकवर करी जाएगी प्रोपोर्शनेटली। सो 4 साल इज़ द सर्विस पीरियड इंक्लूडिंग द प्रोबेशन पीरियड, मतलब जिस टाइम पे आप ट्रेनिंग में रहते हैं वो टाइम भी आपका गिना जाएगा। सो 4 साल का सर्विस अग्रीमेंट। सो इफ़ यू आर सीरियस फॉर दिस जॉब देन ओनली अप्लाई इन दिस जॉब बिकॉज 4 साल कोई छोटा पीरियड नहीं होता, इट इज़ अ लॉन्ग टाइम। सो इफ़ यू आर interested to go into this field only then apply for this। नेक्स्ट है ये इसमें दिया है कि कॉपरेशन ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी पीरियड शैल बी लायबल टू पे द सैलरी रिसीव्ड बाय हिम ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई हैं इसमें कि कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं। तो 11 से 29 तारीख तक ये फॉर्म भरा जा सकता है। उसके लिए फ़ीस देख लेते हैं। जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है वो 850 है, लेकिन जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं ST SC PH कैंडिडेट्स हैं
उनको ये फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग दिस फीस। तो इफ़ यू वांट टू अप्लाई यू कैन 850 प्लस GST एट द रेट 80% के हिसाब से आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। और इसमें इसका जो फॉर्म भरेंगे उसमें आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एंड सिग्नेचर एंड ऑल दोस थिंग्स डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सो ये था मेन चीज़ जो हमें इस फॉर्म में देखनी थी। तो अगर आप लोग इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं then you can go through this PDF file. I will provide the link in the description box below and you can apply for this. Also I will be telling you in this video like how to apply for this job and how to access this PDF file. So ये जो फाइल है ये 34 पेजेस की है। आई हैव टोल्ड यू द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच वर रिक्वायर्ड एंड इसमें नीचे बहुत सारे फॉर्म्स एंड डिक्लेरेशंस हैं। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं या फिर और भी चीज़ों के मेडिकल एंड अदर थिंग्स के डिक्लेरेशन है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू दिस फाइल। So now I will be telling how to this access this PDF. So now I have opened the GIC of India home page. Then we will go to careers part. यहाँ पे careers में आ गए हम। अब हम इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमें दिख रही हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्समैन ऑफिसर सिलेबस है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है और एक डिटेल एडवर्टीजमेंट है। सो जो अभी अपन ने PDF देखा था वो डिटेल एडवर्टीजमेंट थी। नेक्स्ट अप्लाई ऑनलाइन में जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें हम अप्लाई करेंगे। तो ये जो है ये ओपन हुआ है, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का भी एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब रजिस्टर करेंगे तो आपके यहाँ पे न्यू क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। आप जब यहाँ पे जाएंगे तो आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नेम, फर्स्ट नेम, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। जब आप लोग ये चीज़ें फिल करेंगे देन आप लोग को ईमेल पे एक आईडी और पासवर्ड आएगा। वो चीज़ें वो डिटेल्स आपको लॉगिन पेज पे डालना होगी। और जब वो आप लॉगिन पेज पे डालेंगे यहाँ पे जब वो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके बाद एक बार जनरेट हो जाएगा तो देन यू हैव पुट दोज क्रेडेंशियल्स इन देयर हेयर एंड जब आप लोग ये डिटेल्स डालेंगे फिर वो एक न्यू पेज ओपन होगा एंड उसमें सारी डिटेल्स मांगेगा कि आपकी बेसिक सारी डिटेल्स मांगेगा। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कहाँ से पास किया, सो सारी डिटेल्स जो भी एक रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाते हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मांगेगा। आपकी सिग्नेचर, आपकी फ़ोटोग्राफ, आपकी फ़ीस, ये सारी चीज़ें डिटेल्स को लेगा। सो यहाँ पे वो डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। और नेक्स्ट ये है इसमें एक डिटेल एक वो है कि आपका सिलेबस क्या होगा, मेन थिंग। सो सिलेबस ये जो है ये मैंने पहले ही से डाउनलोड कर लिया था। सो ये जो सिलेबस है यहाँ पे इंश्योरेंस स्ट्रीम का अलग सिलेबस है, जो फाइनेंस के हैं उनका अलग सिलेबस है, जो लॉ के हैं उनका अलग सिलेबस है। सो लेट्स गो थ्रू दिस। ये जो सिलेबस है पार्ट ए इंश्योरेंस स्ट्रीम का अलग है, ये आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे इनने एक और चीज़ दी है कि अगर आप इंश्योरेंस वाली में अप्लाई कर रहे हैं तो इन लोगों ने एक बुक रेफर की है, यू कैन गो थ्रू दिस। प्रैक्टिस ऑफ जनरल इंश्योरेंस एडवाइस की है कि आप लोग इसको एक गो थ्रू कर लें। नेक्स्ट है CA का करिकुलम जो है, उसमें CA फाइनल के 6 सब्जेक्ट का बोला है। कंपनी लॉ, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंट जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में सिर्फ GST, यहाँ पे कस्टम नहीं मिला है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट एंड लॉ। सो ये पूरे 6 सब्जेक्ट हैं जो CA फाइनल करिकुलम से बोले हैं। देन फॉर लीगल they have given various laws, insurance laws and regulation, constitution, miscellaneous law। यहाँ पे बहुत सारे laws हैं, एक्ट है। सो आप लोग जाके गो थ्रू कर सकते हैं। एंड इसकी जो सैलरी है वो 7.8 से बहुत ही ज़्यादा होगी, बिकॉज 7.8 दे हैव टोल्ड एक्सक्लूडिंग द एमोनमेंट्स जो भी इंटरनेट फैसिलिटी एंड होम फर्निशिंग फैसिलिटी उन सबको छोड़ के इन लोगों ने 7.8 बताया है। So if you want to go this job and you are serious for this job, please to apply for this job. And if you like this video, please like, share and subscribe and press the bell icon so that you didn't miss any job opportunity. And इसकी last date I will recall it again that 29th है। So आज ही अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज लास्ट डे में कोई ऐसी चीज़ वो मांग लेता है पोर्टल दैट यू डोंट हैव। सो if you are interested for this job, apply today only. So please like, share and subscribe the video and thank you.